देशपांडे सर को प्रणाम। आदरणीय देशपांडे जी को प्रणाम। आप म्यूट हैं सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी नमस्ते। पांडे जी नमस्कार। आपको नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है? नमस्ते। ठीक है सर। ठीक है सर। आप 2:30 बजे से आ गए सर? 2:30 बजे से? जी अच्छा जल्दी आ मुझे गए। कहा गया कि पहले आप ट्रायल कर लीजिए। सब होता है कि कभी कभी किसी के पास लोड नहीं होता है, वो क्या कहते हैं कि एप्लीकेशन, तो वो पहले से कहना उचित रहता है। जी एक्चुअली सर ये ना जो आया ये मिनिस्ट्री की वेबसाइट से भी लिंक कर देते हैं चारों तरफ, तो हम सोचते हैं कि ना ज्यादा थोड़ा सा प्रेजेंटेशन सही हो, ये टेक्निकल एरर्स कम हो, इसलिए आपको कष्ट दे दिया होगा। नहीं कोई बात नहीं। हिंदी में बोलेंगे सर कि अंग्रेजी में? अरे आप जो कहेंगे। जैसा आदेश। डॉक्टर अनु। डॉक्टर अनु। परितोष। परितोष। यस सर। डॉक्टर अनु से बोलिए बात करें मेरे से। जी सर। जी सर। मिनिस्ट्री सर का क्या ज्वाइनिंग की स्टेज है? बात हुई? किशोर मेरे जरा लाल वाला वो उठा ले, पट्टी जरा ये रखा है, मुंह में लगा दिया। हमने बंद कर दे। तौलिया ये वाली रखिए ना तखत में। ये अभी भी मैं कर रहा हूँ, चलिए हम स्टार्ट करा देते हैं। अगर Good afternoon, Namaste, one and all. On behalf of Rashtriya Ayurveda Vidyapith, myself, Dr. Anu Ruhila, welcome you all in the 40th Facebook live session of weekly webinar from tutorial series of Gyan Ganga, a knowledge voyage. This webinar series has started with an aim of sharing traditional knowledge, upgrading knowledge and skills through live interactive sessions with experienced faculties and practitioners of Ayurveda around the globe, and for inculcating classical Ayurveda practices among Ayurvedic students. बढ़िया से बोलो। डॉक्टर अनु आपकी पिक्चर थोड़ी सी उलट गई है। डॉक्टर अनु। Yes, sir. आपकी ना पिक्चर, आप वीडियो चाहे ऑफ कर दीजिए, आपकी पिक्चर थोड़ी सी टिल्ट हो गई है। गो अहेड। अब ठीक है। गो अहेड। यू कैन रीस्टार्ट। Okay, sir. Good afternoon, Namaste, one and all. On behalf of Rashtriya Ayurveda Vidyapith, myself, Anu Ruhila, welcomes you all in the 40th Facebook Live weekly webinar come tutorial series of Gyan Ganga, a knowledge base. This webinar series has started with the aim of sharing traditional knowledge, upgrading knowledge and skills through live interactive sessions with experienced faculties and practitioners of Ayurveda, and also for inculcation of good classical Ayurveda practices among Ayurveda students. Till date, RAV has successfully conducted 39 such webinars, which itself is a big milestone achieved so far. Today, we have very eminent guest speaker, Dr. Kamlesh Kumar Reddy, who will be delivering lecture on the concept of Ahar. Ahar is one of the three Uttam described in Ayurveda classic, and there is vast discussion of the concept of dietetics and nutrition in our science. According to our stages, complexion, longevity, brilliancy, happiness, satisfaction, nourishment, strength, energy,
Intellect all depend upon food. Thus, dietary consideration is an important part of an individual's daily routine. Considering the utmost importance of diet, promotion of positive health, RAV has organized this webinar on this topic. Now, I request our very most respected Vaidya, Anupam Srivastava sir, Director Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, to address the gathering with his kind words. Over to you, sir. Thank you, Dr. Anu. Thank you for your kind words. On behalf of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, on my own behalf, I welcome you all on this another series of the webinar. It is really a proud moment for the team RAV and the support, and also for all the respected gurus, the members who are all being supporting us to carry this journey. And this journey is almost 40. It is close to 40, and this is a good achievement from our perspective and also from the students' perspective. First of all, I welcome you all, this respected gurus, GB members, and students, whosoever has joined on this virtual platform. I welcome you. I had been blessed by all the seniors and respected Secretary Sir of the Ministry of Ayush, Vaid Rajesh Kotecha Sir, Additional Secretary Pathak Sir, our technical mentor Manoj Nesri Sir, and undoubted unconditional support by our own GB member Vaid Tribuna Ji, who all have supported, who all have guided, who all have mentored, through which we are continuing this tutorial series of the webinar. I trust, to best of my understanding, I trust this could be informative, and this might have contributed to the knowledge storage, to the knowledge of the students and also whosoever is participating. Today's topic is quite important, and I welcome you all to the post-Holi session, where you have taken a lot of rich diets, rich ahar, right from the puddings and all the things made from the maida and all that, and also for this being here. And today's the topic, this Ayurvedic dietetics. We all know dietetics. What is dietetics? This is basically the practical approach, how the principle of the nutrition could be understood, or how the principle of the nutrition are addressed. And this is and when it comes to Ayurveda, when it comes to the diet, it is huge descriptions, ample description, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सूत्र रूप में हमारे पास हैं. आहार शब्द देखा जाए तो शब्द कद्रुम से शुरुआत है. वहाँ वो कहते हैं swallowed through throat after eating. कोई भी चीज जो थ्रोट से swallow की जाए खाने के पश्चात, शब्द आहार की वो व्याख्या करता है. दलहड़ कहते हैं कि swallowed through अन्न नलिका में जो कुछ swallow किया जाए. अगर देखें तो in comparison चक्रपाणी has a more closer swallowed through who says anything which is ingested, but it opens also a scope for the medicine also. अगर in contrary देखें तो जो कंटेम्प्रेरी साइंस है उसने आहार के डाइट के बारे में ह्यूज डिस्क्रिप्शन दिया है. एनीथिंग विच इज इंजेस्टेड बाय द लाइव ऑर्गेनिज्म, जिंदा ऑर्गेनिज्म द्वारा, एंड दैट इज मेटाबोलाइज्ड, और जो चीज मेटाबोलाइज्ड हो इन एनर्जी फॉर्म, दैट कुड बी आहार. तो ये तो आहार के बारे में बातें हुई. हम देखते हैं तो सबसे पहले आहार की बात करें, सबसे पहले कंप्लीट आहार की अगर बात करें तो वो शायद होता है मदर्स मिल्क. एक कंप्लीट आहार है, और जो कि शायद वो सबसे पहले जब कोई मनुष्य, कोई प्राणी, इवन जंतु भी अगर आता है तो माँ का जो दूध है, जो माँ का आहार है, वो सर्वोत्तम और शायद सर्वोत्तम और श्रेष्ठ आहार है, जो कि कंप्लीट न्यूट्रिशन करता है. और देखें तो आयुर्वेद में आहार के बारे में अलग अलग भेद बताए हैं, आशीत, खदित, पीत, लेह. हमारे लर्नड स्पीकर उस पर डिटेल बताएंगे. जैसा कि उन्होंने कहा कि ऑल ओज, तेज, धातु, बल, तुष्टि, आरोग्यता, ऑल डिपेंडेंट अपॉन आहार. और मुझे लगता है कि जो हमारे आहार को महाभैषज कहा गया, आहार को जो काश्यप जी ने कहा, वो आज के रेफरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ फॉल्टी लाइफस्टाइल है, इरेगुलर डाइटिक हैबिट्स है, हम सही से खाना नहीं खाते, हम जिह्वा लौल्य के कारण बहुत सी चीज़ों पर अट्रैक्ट होते हैं जो शायद देह के लिए अच्छी ना हो, जो शायद हमारे लिए अच्छी ना हो.
इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो आहार के बारे में और पर्टिकुलरली आयुर्वेद में जो आहार के बारे में वर्णन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आहार के बारे में कहा भी गया, अष्टविध आहार आयतन भी डिटेल बताया गया है, प्रकृति, करण, संयोग, वो हमारे स्पीकर बताएंगे। आहार विधि कैसे करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, उष्ण अर्शनयात, स्निग्ध अर्शनयात, कैसे उष्ण खाना खाना चाहिए, मात्रावत कैसे खाना खाना चाहिए। उष्ण भोजन क्या करता है, हम जानते हैं कि कफ का भी शमन करता है, श्रोतों को खोलता है। इवन आयुर्वेद में कहा भी गया है कि हम उष्ण जल का सेवन करें। जबकि आज के हम देखते हैं कि आधुनिक साइंस में, आधुनिक जीवन में हम फ्रीज्ड चीजें लेते हैं, हम ठंडी चीजें लेते हैं, हम जो कि अग्नि के विरुद्ध हैं। साथ साथ स्टडीज ने शो किया, काफी पहले 10 साल पहले ये स्टडीज ने ऑलरेडी शो किया है कि फ्रीज्ड चीजें जो हम खाते हैं वो कम न्यूट्रिटिव होती हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद कम होती हैं। इन तमाम बातों को अगर देखें हम तो आयुर्वेद में जो वर्णित ज्ञान है, जो आयुर्वेद में वर्णित आहार विधि है, अष्टविधि, अब देखिए अगर आप बात करें तो हमारे पास डायटिक इनकम्पैटिबिलिटी की जो बात है, विरुद्ध आहार की बात है, जो कि विरुद्ध आहार को चरक ने डिटेल्ड बताया है 18 तरीके के। सुश्रुत ने 4 भागों में कहा कि उसको वीर, विरुद्ध, मात्रा, ऐसे करके जो विरुद्ध आहार का कंसेप्ट दिया है, वो कंसेप्ट शायद मौलिक कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट शायद हमारा मूल कंसेप्ट है। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं और उनको आज के समय में इसको उनका ज्ञान होना, और ज्ञान के साथ साथ अगर हम इस कंसेप्ट को, आयुर्वेदिक डायटेटिक्स के कंसेप्ट को, आयुर्वेद में जो आहार की धारणा है, रस प्रधान है, आहार रस प्रधान है, औषधि प्रधान है, फिर उनमें क्या क्या षड्विध आहार होता है, ये तमाम बातों को अगर हम ध्यान दें कि अपनी प्रकृति के अनुसार, रोगानुसार, पथ्य पद, होलसम अनहोलसम की बातें हैं, पथ्य पद का कंसेप्ट जो कि हमारा मौलिक कंसेप्ट है, इन अगर तमाम चीजों को अगर हम पालन करते हुए डे टू डे कंडीशंस में और बीमारी की कंडीशंस में, इफ यू टेक इंटायर कंसेप्ट इन totality, if you take entire concept by or in own practice, definitely we could get better results. We could save our body from the disease condition. We could save our energy also, and definitely the oj will be nourished. With few words, with basic this background, with my understanding, before I hand over this the place to the KK Dwivedi sir, who has been teacher also, has done a lot of things. I will request Dr. Anu to be, kindly share the brief biodata of Dr. KK Dwivedi sir, and then over he can deliberate on the issue. Unfortunately, again the meeting is going on like previous two. We are saying from last 2 or 3 things webinars. There is a meetings on this colliding with our meeting. Coincidence is there कि senior officer meeting is going on, and our secretary sir, our distinct GB president sir, Messi sir, who are the mentor, who are supposed to be here and who are always blessing us in a form of their blessing. They are not available, but they have passed their wishes and they will join when the deliberation goes on. So in spite of wasting the time, I will request Dr. Anu, please share the brief about Dr. Dwivedi sir. Then our Dr. Dwivedi sir could enrich our understanding, to enrich our participant understanding about the Ayurvedic dietetics, how and why it is important and how we can implement. Over to Dr. Anu, please. Thank you. Thank you very much, sir, for sharing your opinions and views. Now, Dr. Kamlesh Kumar Dwivedi sir, he is MD, PhD in Kai Chikitsa and Manas Rog from IMS, Banaras Hindu University. Sir has teaching experience of more than 20 years. He is presently working as associate professor in the Department of Kai Chikitsa and Panchkarma in Government Ayurveda PG College, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi. Sir has received Hari Om Ashram Gold Medal Award in 2001, Best Teacher Award from Lions Club and Rotary Club in the year 2006 and 2007 respectively. He has also received Yoga Ratna Award in International Conference on Yoga Science and Education, Banaras Hindu University, and Kashi Ratna Award in 2019, and also received Shikshak Samman in 2020 from Rashtriya Shikshak Mahasangh Varanasi. He also received a Lifetime Achievement Award by Arogya Mandal Charitable Trust Bareilly in 2020. Sir has authored 3 books and published more than 41 papers in reputed journals. He has mentored many scholars of MD and PhD in Ayurveda. He is also editor of Journal of Vishwa Ayurveda Parishad since last 11 years. Now,
Before starting the session, I request all the participants to kindly turn their mic and camera off during the lecture. At the end, we will be having a question and answer round. Now it's time to invite our today's speaker, Dr. Kamlesh Kumar Dwivedi sir, to start with his lecture on the topic concept of Ayurveda Ahar. Over to you, sir. धन्यवाद, सबको प्रणाम। ज्ञान गंगा के इस पावन गंगा में मैं गंगा तट से काशी विश्वनाथ एवं अन्नपूर्णा मां के दरबार से आपके सामने अपनी कुछ बातें कहने के लिए उपस्थित हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय सेक्रेटरी सर वैद्य राजेश कुटेचा जी, अपने एडिशनल सेक्रेटरी श्री प्रमोद पाठक जी, हमारे सम्माननीय आदर्श वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, वैद्य मनोज नेसरी जी, निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ वैद्य अनुपम जी, इस ज्ञान गंगा में उपस्थित हमारे बड़े अग्रज वैद्य मधुसूदन देशपांडे जी, वैद्य रमन जी और अन्य गुरुजन तथा अन्य श्रोतागण जो इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए उपस्थित हैं। सबसे पहले पुनः आप सबको नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहूंगा। हमारा आज का विषय है कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेदी आहार, दैट इज आयुर्वेदिक डायटेटिक्स। सबसे पहले जब मरीज एक चिकित्सक के पास आता है और मुख्य रूप से यदि वो वैद्य के पास आता है तो हमारे सारे प्रिस्क्रिप्शन के बाद भी सबसे पहले वो ये पूछना चाहता है कि सर मुझे क्या खाना है। यानी कि समाज में हमारे चिकित्सकों के लिए सबसे बड़ा अपने मरीजों को बताने के लिए जो प्रश्न होता है वो है आहार। सामान्यतया ये संभव नहीं होता कि हम सारे आहार की लिस्ट रखें या लिखें। चिकित्सक चिकित्सा करता है, नाड़ी परीक्षण करता है या अन्य परीक्षण करता है और पश्चात एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है कि ये ऐसे खाना है, ये ऐसे खाना है। लेकिन हमारा कार्य यही समाप्त नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ आहार की जो कल्पना की गई है वो विशद है। जब हम चिकित्सा की बात करते हैं तो चिकित्सा 3 प्रकार से बताई गई है: दैवोपाश्रय चिकित्सा, युक्तिपाश्रय चिकित्सा और सत्वावजय। दैवोपाश्रय चिकित्सा में मणि मंत्र, मंगल, स्वस्त्यन, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि की चर्चा होती है, जो आजकल बहुत कम चिकित्सकों के क्षेत्र में आती है और मूलतः यह ज्योतिष शास्त्र के लोगों के द्वारा अधिकृत कर दी गई है। द्वितीय विभाग युक्तिपाश्रय चिकित्सा, जहां संशोधन और समशमन कर्म, संशोधन में पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, और समशमन में हमारे पास जो विषय होते हैं वो आहार, विहार और औषध। यानी सबसे पहला वहां पे जो वर्णन किया गया है वो आहार है, विहार है और तत्पश्चात औषध है। यानी कि इसके बाद ही हमें औषध की कल्पना करनी है। और तीसरा पक्ष है सत्वजय का, जो हम लोग कहते हैं कि काउंसलिंग है या सत्व पे विजय प्राप्त करने की कला है या सत्व पर विजय प्राप्त करने की विधि है। अभी चर्चा हो रही थी आहरिते अन्ननलिकया इति आहार। आहार किसे कहते हैं? लेकिन यदि हम ये सोचें कि इसके अलावा भी कुछ मार्ग होते हैं जहां से आहार या पोषण दिया जाता है, क्या गुदा मार्ग से दिया जाने वाला चिकित्सा वो आहार ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? क्या हम आईवी लाइन से अगर आईवी फ्लूइड्स देते हैं तो उसे आहार ग्रहण करना चाहिए या नहीं? हमारा कहना यह है कि वो सारी चीजें जो शरीर को पोषण देती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं,
वो हमारे लिए आहार के रूप में ग्रहित की जा सकती हैं। जब हमारे यहाँ उपस्तंभ की चर्चा होती है तो वहां भी सबसे पहले त्रयः उपस्तंभ इति आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यम इति, यानी सबसे पहले आहार, पश्चात निद्रा, तत्पश्चात ब्रह्मचर्य। इतनी महत्ता हमारे यहाँ आहार की वैदिक काल से की गई है। हिप्पोक्रेटस ने कहा 460 से 357 बीसी में, और वो एक कोट बन गया, लेट फूड बी द मेडिसिन एंड नॉट मेडिसिन बी द फूड। भोजन को ऐसे ग्रहण करो जैसे वो औषधि की तरह आपके शरीर में कार्य करे, न कि औषधि इतनी ज्यादा लें कि आपको फूड की जगह औषधि लेनी पड़े। लेकिन आप ये देखें कि हमारे वैदिक काल में बहुत पहले इसकी चर्चा विस्तृत रूप से की गई है। डाइट इज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स प्रोवाइडेड बाय नेचर फॉर हेल्दी लाइफ, लॉन्ग लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। हमारे यहाँ आहार की कल्पना बच्चे के जन्म से ही शुरू हो जाती है। माता का सबसे पहले दुग्धपान कराना हम स्तनपाइयों के लिए सबसे बड़ा वरदान होता है, और वो इसलिए कि सबसे ज्यादा पैलेटेबल वह आहार होता है जो नवजात शिशु के लिए आवश्यक है। इन एंशिएंट क्लासिक्स वेरी मच इंपॉर्टेंस हैज बीन गिवन टू द आहार फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। The wholesome and unwholesome foods are responsible for happiness and misery respectively. Sorry to interrupt, sir. जी, Sir, your slides are not visible, sir. visible? Not yet, sir. Okay, just I'm seeing. Yes, sir. Yes, sir, they are visible. You can, sir, share it in full screen, sir. Is it okay? Yes, sir, it is okay, sir. It's Now. visible, sir. Okay. Now, dietary consideration is an important component of every prescription in Ayurvedic therapy. Sometimes dietary management in itself is a complete treatment. कभी-कभी ऐसा भी होता है कि केवल आपने व्यक्ति के आहार कल्पना को बदल दिया, आपने उसके डाइट चार्ट को बना दिया, क्या खाना है क्या नहीं खाना है यदि आपने उसे बता दिया तो वो पूर्ण रूप से वो एक चिकित्सा व्यवस्था पत्र ही कहा जाता है। आयुर्वेदिक dietetics is concerned primarily with the energetics of food as a means of balancing the biological humors. हमारे यहाँ जो आहार की कल्पना की गई है वो दोषों के ध्यान में रख के की गई है। किसको दोष को कैसे बैलेंस करना है, किसको घटाना है, किसको बढ़ाना है, और अल्टीमेटली ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं हमारे वात पित्त कफ के टर्म में कही जाती हैं या हम उसे समझते हैं। Contrary to modern approach, it doesn't deal only with the specific nutritional contents of food such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, etc. Modern medicine केवल इनकी बात करता है, but also it takes into account the food we take in and the manner in which we take it. हम आहार लेते कैसे हैं, नेचर ऑफ फूड, उसकी प्रकृति क्या है, व्यक्ति का अग्निबल कैसा है, मोड ऑफ प्रिपरेशन कैसा है, कैसे हमको बनाया गया है, कैसे संस्कारित किया गया है, किस कॉम्बिनेशन में लिया गया है, और क्या सीजन है,
किस स्थान पे लिया गया है और किस वातावरण में लिया गया है, बहुत सारी कल्पनाएं हमारे आयुर्वेदीय आहार शास्त्र की विशिष्टता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हम इन सारी बातों की कल्पना करते हैं, व्यक्ति कौन खाना बना रहा है यह भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। घर में खाना खाने वाला व्यक्ति जब बाहर खाता है, या बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं वो जानते हैं कि एक मैकेनिकल तरीके से बनाया हुआ खाना जो सवेरे शाम एक ही स्वाद का होता है, कोई सब्जी आप उठा के खा लीजिए, कोई प्रिपरेशन खा लीजिए, लेकिन यदि वही घर पे बना होता है, उसमें वो जो भाव रहता है अपने घर के बड़ों का या जो बनाने वाले हैं, उससे उसकी गुणवत्ता बदल जाती है। यदि हम वैदिक काल से शुरू करें, the Vedas are considered to be the first written records of Indian literature, contains innumerable dietary references. पुरुष एवेदम सर्वम यदभूतम यच्च भव्यम उतामृत तस्येषानो यदन्ये नाति रोहति. Purus is all that contains past, present and future. He is the governor of Atma too, and which is manifested by Anna. Again in Taittiriya Upanishad, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नात् भवेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्त्यत् तभी सविशन्ति. Means the anna has been regarded as Brahma, as all the animates are produced from anna. After production, life is maintained by anna, and at the end assimilate in the anna. यानी अन्न से ही हमारा निर्माण होता है और अन्न में ही हमारी सदगति प्राप्त होती है. छांदोग्योपनिषद lays more emphasis on purity of food and its effect on body and mind. There is a special relationship between diet and antahkaran. It has been said that if one takes pure and wholesome diet, his antahkaran will be pure and delighted. कॉमन भाषा में, सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन. भगवद गीता says अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यान अन्न संभवः. It is accepted as a source for creation of life. युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः. If you want to achieve success in yogic practices, there is a clear-cut emphasis on appropriate diet, along with other activities and regimen of life. हेलो सर, Hello. एक्सक्यूज मी, Hello. स्लाइड चेंज नहीं हो रही सर. So again, I have to go back. स्लाइड चेंज करना है सर हर बार आपको. I'm changing it, sir. हाँ या. So can we see on this small one? यू कैन मेक अ फुल स्क्रीन आल्सो सर. फुल स्क्रीन करिएगा आप. आपका अभी फुल स्क्रीन नहीं हुआ है. यस सर, अब हो गया. So again, if you see चरक संहिता, हितो आहारोपयोग एक एव पुरुष वृद्धि करो भवति अयता आहारोपयोग पुनर्व्याधि निमित्तामिति. Charak says, in the context of to the origin of Purusha and his diseases, the concluding remark of Punarvasu Atre to accept the ahar as a causative factor for both means स्वस्थ के व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करना और व्याधियों के निमित्त का कारण भी आहार है. In Susu Samhita, a detailed description of dietetics by Lord Dhanvantari regarding the applicability and importance of diet in human life is self-sufficient to prove the historical significance of it. In Kasyap Samhita, showing the importance of diet, it is called Mahabhaisajya. Means आहार को हम लोग महाभैसज्य भी कहते हैं. Then again, Swastamrit Samuchaya says, आहारो नाम यदन्न मार्ग द्वारा सरिसरस्य अंतर अनियते तत्र च सह परिवर्तितः शरीर अवयवान् परिपोषयति सुरक्षति तथा क्षति प्रपूरयति शरीर शक्तिं परिवर्धयति जीवयति च. It has been said that
whatever material taken by mouth into the alimentary canal, which is long run after proper digestion transformed into the tissue elements and do the functions such as promotion of growth, recovery of loss, protection from diseases, for survival of body, is termed as आहार। ऐसी सारी चीजें आहार के रूप में आ सकती हैं जो धातुओं का निर्माण करती हैं, व्यक्ति के वृद्धि करती हैं और जो हमारे यहाँ क्षय हो रहा है उसकी प्रतिपूर्ति करती हैं और डिजीज यानी कि व्याधियों से जो बचाव करती हैं, जो आवश्यक है शरीर के सर्वाइवल के लिए, और इसको हम आहार कहते हैं। यद आहार जातम अग्निवेशः समांश्चैव शरीर धातून प्रकृतौ स्थापयति विषमांश्च समीकरोति यत्तेत द्वितम विद्धि विपरीतम तहितमिति। Charak says that it is the ahar which maintains the equilibrium of body dhatus and helps in promotion of health and prevention of diseases. Aharah prinanah sadyo balakrid dehadharakah आयुष तेज समुत्साह स्मृति ओजो अग्नि विवर्धन। So says ahar is that which restores the vigor, provides strength immediately after taking, sustains food, sustains body and increases the lifespan, happiness, memory, power, ojas and digestive capacity। तो ये हम देखते हैं कि कितनी अच्छी बातें अपने इस आहार के संदर्भ में कही गई हैं। Being supported by these three well-regulated factors of life, the body is endowed with strength, complexion, and growth, and continues up till the full span of life. पूरे जीवन पर्यंत इसकी आवश्यकता है। आचार्य चरक has mentioned that अन्न is the best sustainer of life. अन्नम वृत्तिकराणम श्रेष्ठम, और अन्न से बढ़िया, अन्न से ज्यादा उपयोगी कोई चीज नहीं है। अगेन चरक से प्राणाह प्राणभिता मन्नम लोको अभिधावति वर्ण प्रसादः सौस्वर्यम जीवितम प्रतिभा सुखम तुष्टि पुष्टिर बलम मेधा सर्वम अन्य प्रतिष्ठितम लौकिकम कर्म यद्वृत्तौ स्वर्गतौ यच्च वैदिकम कर्मापवर्गे यच्चोक्तम तच्चाप्यन्ने प्रतिष्ठितम। Taking into account the utility of food not only at individual but at universal level, it has been mentioned that whatever beneficial for worldly happiness, whatever pertains to the Vedic sacrifices leading to heaven, and whatever action leads to spiritual salvation are all said to be established in food। यानी कि आहार पे ही ये पूरा हमारा जीवन टिका हुआ है, और वर्ण प्रसाद स्वर जीवित प्रतिभा सुख तुष्टि पुष्टि बल मेधा सारी चीजें अन्न में ही प्रतिष्ठित हैं। आहार समवम वस्तु रोगश्चाहार संभवः हिताहित विशेषाश्च विशेष सुख दुखयो। चरक कहते हैं कि आहार से ही व्यक्ति को निरोगता या रोग उत्पन्न होते हैं। प्राणी नाम पुनर्मूल आहारो बल वर्ण ओजसाम च, ऐसा सुश्रुत कहते हैं। वैद्य जीवन में बड़ा ही लोकप्रिय एक श्लोक है, सभी ने पढ़ा होगा, पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणैः पथ्ये असति गदार्थस्य किम औषध निषेवणैः। यदि पथ्य का पालन हो रहा है तो रोग उससे दूर दूर है। ऐसे व्यक्ति के लिए चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि कोई अपथ्य सेवन कर रहा है तो उसके लिए औषध बेकार है। और आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जीवन काल में जो हम लोगों का आहार शैली है वो निश्चित रूप से हम लोगों को एक संताप देने वाली है। सदा पथ्यम प्रयोक्तव्यम ना पथ्येन स सिद्ध्यति औषधेन बिना पथ्यै सिद्ध्यते विषगोत्तमैः बिना पथ्यम न साध्य स्याद औषधानाम शरीरपि सतैरपि। अब यदि हम आहार के क्लासिफिकेशन करें योनि के आधार पे स्थावर और जांगम,
प्रभाव के आधार पे हितकर और अहितकर, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, पान, अशन, भक्ष्य, लेह। रस के आधार पे, छव रस के आधार पे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। गुण के आधार पे गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मंद, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, कठिन, विशद, पिच्छिल, श्लक्ष्ण, खर, सूक्ष्म, स्थूल, सांद्र, द्रव। यानी कि गुणों के आधार पे इतने डिवीजन किए गए हैं। चरक ने सूत्र स्थान में एक क्लासिफिकेशन किया है जो फूड आर्टिकल्स का 12 विभागों में। शुकधान्य, शमीधान्य, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग, हरित वर्ग, मध्य वर्ग, अंबु वर्ग, गोरस वर्ग, इक्षुविकार, कृतान्न, आहार योग। 12 प्रकार से उन्होंने इसका वर्णन किया है। सुश्रुत ने और विशाल वर्णन किया। अंबु वर्ग, क्षीर वर्ग, दधि वर्ग, तक्र वर्ग, घृत वर्ग, तैल वर्ग, मधु वर्ग, इक्षु वर्ग, मध्य वर्ग, शाली वर्ग, उधान्य वर्ग, बुद्ग वर्ग, मांस वर्ग, फल वर्ग, शाक वर्ग, कांड वर्ग, लवण वर्ग, कृतान्न वर्ग, भक्ष्य वर्ग, पानक वर्ग, अनुपान वर्ग। यानी कि ऐसा कोई आहार किसी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम वैद्यों को इन सब की जानकारी होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इसका इतने प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। अब बात आती है अष्ट आहार विधि विशेष आयतन की। एक यूनिक अप्रोच आयुर्वेद का है। दीज आर द स्पेशल कंडीशंस फॉर इनटेक ऑफ फूड। प्रकृति, नेचुरल क्वालिटीज, तत्र प्रकृति उच्यते स्वभावो यह। नेचुरल क्वालिटी ऑफ फूड एंड मेडिसिन लाइक गुरु, लघु, किसी भी आहार में ये स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से रहता है। जैसे मांस भारी होता है, मुद्ग हल्का होता है, पोर्क हैवी होता है, डियर्स फ्लेश इज लाइट। तो ये गुण जो है किसी भी आहार का, ये सुनिश्चित है, ये स्वभाव है, ये प्रकृति है। देन करण, प्रिपरेशन। द इंपॉर्टेंट वन इज हाउ वी आर प्रोसेसिंग द फूड। व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रोसेसिंग द फूड? करणम पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणाम अभिसंस्कारः। व्हाट इज संस्कार? संस्कारो ही गुणानांतरा ध्यानम। गुणों का अंतराधान, that processing substances which leads to the transformation of inherent characters of the substance। यानी संस्कार करने के पश्चात उस आहार का, उस भोज्य पदार्थ का गुण बदल जाता है। एंड दे आर ब्रॉट अबाउट बाय द ट्रीटमेंट विद वाटर। पानी से धोने से, एप्लीकेशन ऑफ हीट, शौच, शोधन, मंथन, चर्निंग, देश, प्लेस, काल, टाइम, वसन, स्वीट स्मेलिंग एजेंट एडिशन, भावना, ट्राइचुरेशन, कालापकर्ष एंड भजन। भाजन मीन्स कंटेनर, इन विच कंटेनर इट इज। समय के हिसाब से आम कच्चा है, उसका गुण अलग है, लेकिन समय के साथ वो जब पका उसके गुण अलग हो गए। सिंपली आप अपने घरों पे देखिए, मिक्सी में बनाई हुई चटनी और पुराने घरों में जहां पे सिलवट पे पीसी जाती थी, उन दोनों के गुणों और स्वाद में अंतर समझ में आता है। उसी तरह से दही और तक्र दोनों के गुण अलग अलग हैं। देन संयोग, कॉम्बिनेशन। संयोग पुनर् द्वयोर बहुनाम व द्रव्यानाम संवति भाव। Combination of two or more substances. This results in manifestation of specific qualities. सम मात्रा में मधु और घी विष है, लेकिन विषम
भाव से लेने पर वह गुणकारी है। उसी तरह से फिश और मिल्क नहीं लेना विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। देन राशि, क्वांटिटी ऑफ फूड टू बी टेकन, कितनी मात्रा में लेना है। राशिस्तु सर्वग्रह परिग्रहो मात्रा मात्रा फल निश्चयार्थम। सर्वग्रह, क्वांटिटी ऑफ फूड टेकन its entirety, and परिग्रह, quantity of each of its ingredients, कौन आहार कौन अन्न कितनी मात्रा में लेना। देन देश, हैबिटेट, प्लेस, देशः पुनः स्थानम, स द्रव्यानाम उत्पत्ति प्रचारौ देश साप्यम चक्षते, ओरिजिन प्लेस ऑफ द्रव्य एंड माइग्रेशन मूवमेंट ऑफ प्लेस। यदि हम कहें कि जांगल आनुप साधारण देश में उत्पन्न होने वाले आहार और औषधियों का गुण उन स्थान पे जो होता है, किसी स्थान विशेष पे बदलने पे वो गुण नहीं रहता है। यदि सेब शिमला का है, सेब कश्मीर का है, और यदि सेब कहीं और जगह पे उगाया जा रहा है, इन तीनों के गुणों में अंतर आता है। काल, कालो ही नित्यगश्च आवस्थिको विकारम अपेक्षते। दो प्रकार के काल, नित्य काल डेली अकॉर्डिंग टू सीजन, हम ऋतुओं के अनुसार आहार लेते हैं स्वस्थ रहने के लिए, और दूसरा है आवस्थिक, कंडीशनल, किसी स्थिति विशेष में, किस एज ग्रुप में देना है, किस डिजीज में देना है, इसकी यदि हम कल्पना करते हैं तो वो काल है। देन उपयोग संस्था, रूल ऑफ यूज, डाइटेटिक रूल, डाइटेटिक रूल्स डिपेंडेंट ऑन सिम्टम्स ऑफ डाइजेशन। पाचन हो गया, उसकी कितने देर पश्चात हमें भोजन करना है, कौन सा भोजन कितने देर में पचेगा, एक अनुमान होना चाहिए। उस व्यक्ति का अग्नि बल क्या है, ये आवश्यक है जानना। देन उपयोक्ता, यूजर, इट इज अंडर ओक साप में, शरीर साप में। कोई चीज स्वभाव से आपके शरीर के प्रकृति के पक्ष में हो जाती है, लगातार सेवन करने से वो ओक साप में हो गया, शरीर में साप में हो गया। ये कॉन्सेप्ट है उपयोक्ता का। देन आहार विधि विधान, हमारे यहां आहार कैसे करना है यह भी बहुत ही स्पष्ट इसका उल्लेख है। और किस व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में, रोगी व्यक्ति में कैसा आहार देना। उष्णम अस्नियात, ईट वार्म फूड, इट इज टेस्टी, इट इंक्रीजेज अग्नि, डाइजेस्टेड क्विकली, वात का शमन करता है, एंड रिड्यूसेस द एक्सेस ऑफ कफ। यदि हम जान रहे हैं कि उष्ण जल अपने कोरोना काल में सबके लिए साथ में रहा है, तो हमने उन्हें बताया है कि हमें उष्ण भोजन करना है, उष्ण द्रव लेना है, क्योंकि ये मुझे मालूम था कि उष्ण के क्या गुण हैं। वात का शमन करता है, अतिरिक्त कफ का शमन करता है, कफ को घटाता है। देन स्निग्धम अश्निया, ईट अंक्टस फूड बिकॉज इट इज डेलिशियस, इट स्टिमुलेट्स अग्नि, digested quickly, pacifies vata, nourishes the body, strengthens the sense organs, promotes strength, brings out good complexion. Then matravad ashniya, eat according to quantity. Why? It is prolongs life, does not aggravate vata, easily passes down to rectum, does not impair the agni, and digested without difficulty. खाने का की मात्रा आपके अग्नि बल पे, आपके रोग के आधार पे सब डिपेंड करती है। जीर्णे अस्नियात, पहला भोजन
पूर्ण रूप से यदि पाचित हो गया हो तभी दूसरा भोजन करना है। अदरवाइज improperly digested food mixed with present food and aggravate all dosas। आजकल बड़ा सामान्य हम लोग प्रभाव में देखते हैं, वहां गए खा लिया, और स्पेशली ये होली का त्योहार अभी बीता है, लोग 10 घरों में गए और 10 जगह खाया, और सभी लोग किसी न किसी प्रकार की कठिनाई से पीड़ित थे। तो प्रथम रूप से जो अपना आहार है वो पच गया है, इसके पश्चात ही दूसरा भोजन करना है। यानी वीर्य विरुद्ध न स्नियात। ईट फूड विच इज नॉट कंट्राडिक्टरी। अगर कोई चीज कंट्राडिक्टरी है उसे नहीं कर लेना है। अदरवाइज विभिन्न प्रकार के चर्म रोग, त्वक विकार, कुष्ठ, विसर्प, रक्त विकृति इत्यादि होती हैं। इष्ट देश से इष्ट सर्वोपक्रम कर्मणम च अस्नियात। ईट इन डिजायर्ड प्लेस विद डिजायर्ड आर्टिकल्स। बफे सिस्टम में खड़े होकर खाना, धक्का धुक्की करना और सारे आहार को एक बार में ही प्राप्त करने की योजना। चावल, दाल, पूड़ी, पराठा, सब्जियां 3 प्रकार के, ये आजकल का फैशन है। खड़े होकर बात करते हुए खा रहे हैं। हमारे यहां पूर्ण रूप से पालथी मारकर बैठकर खाने का विधान है। क्यों? क्योंकि वो आपके शरीर में पूर्ण रूप से अग्नि की वृद्धि करते हुए, जो अपनी गैस्ट्रिक जूसेज हैं उनका सिक्रीशन करते हुए उसका पूर्ण रूप से पाचन करती है। अदरवाइज इट रिजल्ट्स इन स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेन तथा अन्य बहुत सी कठिनाइयां होती हैं। ना अति द्रुतम अश्नियात। डोंट ईट इन हरी, otherwise food may enter in wrong passage, may not get good qualities of ras, proper assimilation, gastric juices of food। जल्दी जल्दी खा रहे हैं, और ये बड़े शहरों के व्यस्त जीवन का एक अंग है। लोग गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, रास्ते में खा रहे हैं जल्दी जल्दी। नहीं, क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से रस का उत्पादन नहीं होगा, पूर्ण रूप से उसका मिश्रण नहीं होगा, पूर्ण रूप से हमारे जो ग्रंथियां हैं उनका सिक्रीशन नहीं होगा, और खाना प्रॉपरली नहीं पचेगा। और न अति विलंबितम अस्नियात। डोंट ईट वेरी स्लोली, अदरवाइज यू मे नॉट गेट सेटिस्फैक्शन। ईट्स मोर देन रिक्वायर्ड। जितनी आवश्यकता से ज्यादा खाएंगे, खाना ठंडा हो जाएगा और उसका विषम पाक होगा। अजल्प अन्न हसन तन्मना भुंजीता। ईट विदाउट टॉकिंग, लॉफिंग एंड विद कंसंट्रेशन। कभी भी भोजन करते समय बात नहीं करना है, हंसना नहीं है। कभी ऐसा होता है कि लोग भोजन कर रहे हो, हंसने, किसी बात पे हंसी आ गई, बात कर रहे हैं और रॉन्ग पैसेज में चला गया और खांसी आने लगी। आत्मानम अभिसमीक्ष्य भुंजित सम्यक। ईट आफ्टर कंसिडरिंग वन सेल्फ थॉरोली। कंसिडरेशन ऑफ यूजफुलनेस ऑफ फूड। साथ में होलसम, हमें क्या सूट करता है, हमें किस चीज से एलर्जी है, ये मैं जानता हूं, और उसके अनुसार हमें भोजन करना। अब हम लोग कुछ बात करते हैं द्वादश आसन विचार के संदर्भ में। शीत आहार किसके लिए? जो तृष्णा पीड़ित हैं, उष्णता, मद, दाह, रक्तपित्त, विष, मूर्छा, ऐसे लोग अति मैथुन जन्य क्षीण हैं। उसी तरह से उष्ण किसे देना? कफवात पीड़ित, विरेचित, स्नेहपानकृत, क्लेद रहित। स्निग्ध किसे देना?
वात व्याधि पीड़ित, वातज प्रकृति के लोगों में जिनका शरीर रुक्ष हो, जो मैथुन जन्य क्षीणता से ग्रसित हो, अति व्यायामित, जिन्होंने अत्यधिक व्यायाम किया हुआ है, रुक्ष मेदस्वी व्यक्तियों में, स्निग्ध देह में, प्रमेह में, या कफ प्रकृति में, या कफ जन्य डिसऑर्डर्स में। द्रव किसमें देना? ड्राई बॉडी, डिहाइड्रेटेड, दुर्बल, तृष्णा पीड़ित जो लोग हैं, शुष्क में, कुष्ठ में, विसर्प, व्रण, प्रमेही में, एककालिक जिनकी अग्नि दुर्बल हो, द्विकालिक जो जिनकी अग्नि सम हो, औषधि युक्त भोजन देना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति औषधि से उसको घृणा है तो उसको औषधि युक्त भोजन देना। मात्राशीण मंदाग्नि में, प्रशमन कारक अकॉर्डिंग टू ऋतु, दोष वृद्धि इन रेनी सीजन, मधुर अम्ल, उष्ण आहार, वात शमनार्थ, वृत्ति प्रयोजक जो स्वस्थ हों, जिनके धातुएं सम हों। अब हम लोग चर्चा करते हैं वैरोधिक आहार की, डायटेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटीज, जिसकी चर्चा वैद्य अनुपम जी ने की। गुण विरुद्ध दो आहार एक साथ नहीं लेना, जैसे मछली और दूध। उसी तरह से संयोग विरुद्ध गुड़ और मूली, मधु और मूली। संस्कार विरुद्ध मोर का मांस, जो अपने यहां शास्त्रों में उदाहरण दिए गए हैं। तितिर जिसको एरंड ऑयल में पकाया गया हो, या ऐसा घी जो ब्रॉन्ज यूटेंसिल में मोर देन 10 डेज रखा गया हो, तांबे के पात्र में। देश विरुद्ध यूज ऑफ स्निग्ध, शीत, औषध एंड आहार इन अनुपदेश। काल विरुद्ध रात्रि में सत्तू लेना, शीत, वृक्ष आहार विंटर सीजन में लेना। मात्रा विरुद्ध यूज ऑफ घी एंड मधु इन इक्वल क्वांटिटी। देन प्रकृति विरुद्ध यूज ऑफ वृक्ष, शीत, औषध इन वातिक प्रकृति पेशेंट। सातवें विरुद्ध यूज ऑफ व्हीट इन ए पर्सन हु इज accustomed टू राइस। बंगाल में रहने वाला व्यक्ति चावल सात में है उसके लिए, आ गया उत्तर प्रदेश में, पंजाब में चला गया, रोटी खाने को मिल रहा है। सत्व विरुद्ध यूज ऑफ उष्ण, लघु औषध, राजसिक सत्व पर्सन। स्वभाव विरुद्ध उड़द इन समिधान्य, मिल्क ऑफ शिप, भेड़ी का दूध स्वभाव विरुद्ध है। देन देश विरुद्ध क्लाइमेटिक, वृक्ष, तीक्ष्ण मेडिसिन इन जंगल देश। देन काल विरुद्ध intake of dry cold food in cold season. अग्नि विरुद्ध heavy food in मंदाग्नि पर्सन। तीक्ष्ण अग्नि के व्यक्तियों में हल्का खाना देना, लेस क्वांटिटी में, कम मात्रा में देना। देन मात्रा विरुद्ध क्वांटिटी, हनी एंड घी इन इक्वल प्रोपोर्शन। अगेन सातवें विरुद्ध intake of sweet and cold food for a person who is accustomed to pungent and hot food. गुजरात का व्यक्ति चरपरा खाता है, मीठा खिलाना शुरू कर दिया आपने। दक्षिण भारत के बहुत से प्रांतों में मुख्य रूप से लवण, अम्ल, कटु प्रधान आहार किए जाते हैं। दोष विरुद्ध अगेंस्ट द बॉडी ह्यूमर, यूज ऑफ सेम क्वालिटी ऑफ आहार, औषध विच एग्रीवेट्स दोष। वात प्रकृति के व्यक्तियों में
वातवर्धक आहार देना। देन संस्कार विरुद्ध, बॉइलिंग ऑफ बटर मिल्क, शक्कर को उबाल करके देना। देन वीर्य विरुद्ध, अगेंस्ट द पोटेंसी, चिलची मछली दूध के साथ, मीट को शहद के साथ लेना, दही के साथ लेना, ये सारे क्या करते हैं, ये रक्त को दूषित करते हैं, अभिसंदन करते हैं, मार्गावरोध करते हैं। देन कोष्ठ विरुद्ध, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइल्ड पर्गेटिव इन स्मॉल डोज इन क्रूर कोष्ठ। जानता हूं कि क्रूर कोष्ठ का व्यक्ति है, थोड़ी मात्रा में या मृदु विरेचन दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कोष्ठ विरुद्ध। अवस्था विरुद्ध, कंडीशन ऑफ हेल्थ, intake of Vata aggravating diet by a person whose Vata is aggravated due to excessive exhaustion and sexual act। ऐसे व्यक्ति को वातवर्धक आहार देना जो ऑलरेडी क्षीण है। अवस्था विरुद्ध हुआ। देन क्रम विरुद्ध, हमारे यहाँ एक विशेष क्रम है भोजन करने का। सबसे पहले मधुर खाने का विधान है शास्त्रों में। कंजम्पशन ऑफ फूड before earlier food is digested without evacuation of feces and urine, बिना कोष्ठ की शुद्धि के भोजन करना। परिहार विरुद्ध, intake of hot things after taking pork and intake of cold things after taking ghee। घृतयुक्त सामान लिया और फिर अपने शीतल जल पिलाया। परिहार विरुद्ध। पाक विरुद्ध, against the process of preparation, preparation of food having bad, rotten odor, undercooked, overcooked, burned। पाक शास्त्र के नियमों के विरुद्ध, जला हुआ, ज्यादा पका हुआ, कच्चा, जला हुआ, ये पाक विरुद्ध हुआ। देन संयोग विरुद्ध, खट्टी चीजें दूध के साथ लेना। आजकल मैंगो शेक का बड़ा शौक है लोगों को। खट्टे आम आ रहे हैं, उसमें चीनी भी डाल दिया, दूध भी डाल दिया और खट्टे आम का पल्प डाल दिया और साहब मैंगो शेक पी लिया। 1 घंटे बाद आप स्वयं असर देखेंगे, शरीर पे क्या प्रभाव डालता है। शरीर में भारीपन, गौरव मालूम पड़ता है। प्रैक्टिकली हम देखते हैं। हृदय विरुद्ध, अगेंस्ट द पैलेटेबिलिटी, जो चीज हमें स्वीकार नहीं है, पसंद नहीं है, साथ में नहीं है, उसको लेना। हृदय विरुद्ध। संपत्ति विरुद्ध, रिचनेस ऑफ क्वालिटी के अगेंस्ट हो। आहार या औषध द्रव्य जो इमेच्योर है, ओवर मैच्योर है या सड़ा हुआ है, उसे लेना। इसीलिए हमारे यहां बासी भोजन को त्याज्य कहा गया। उपचार विरुद्ध, यूज ऑफ कोल्ड आहार, औषध आफ्टर घृतपान। विधि विरुद्ध, जो हमारे यहां नियम बताए गए हैं भोजन के, फूड टेकन इन पीसफुल एलोन प्लेस। हमारे यहां जो भी शास्त्रों में नियम बताए गए हैं उसके विरुद्ध विधि से भोजन करना। कुछ ऐसी चीजें भी हैं हमारे शास्त्रों में जो बताई गई हैं कि ये परम अपथ्य हैं, हर अवस्था में अहितकर हैं। जैसे यवक, घुड़जई, वर्षा का जल नदी से लिया हुआ, ऊसर निर्मित लवण, गाय का मांस, मेढक का मांस, चिलची मछली, बहुत सी चीजें। 2 चीजों में मैंने थोड़ा सा क्वेरी लगाई है, उड़द क्यों और सरसों का साग क्यों। बड़ा आराम से लोग उसे लेते हैं, शौक से लेते हैं, कहीं इसका रेफरेंस नहीं मिलता। देन भेड़ी का घी, भेड़ी का दूध, बर्रे का तेल,
भैंस का फैट, कुंभीर फिश, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उपलब्ध भी नहीं है, लेकिन शास्त्रों में चूंकि दिया हुआ है इसलिए इसको देखना आवश्यक है। गौरैया का मांस, हाथी का फैट, बड़हल, लिकुच, राब, फाड़ित, ये कुछ ऐसे क्या करते हैं, क्षार बहुत ज्यादा मात्रा में लेना, दैट इज पुष्पघाती, तिंदुक अरोचक उत्पन्न करता है, कच्चा कैथ अकंठ्य है, भेड़ी का दूध, घी अहृदय है, कफ पित्त का वर्धन करता है, मंदक दही जो पूर्ण रूप से दही में परिवर्तित न हुआ हो वो अभिषंद करता है, श्रोतावरोध करता है, मक्के का भात कर्षण करता है, उद्दालक, कोदो, वृक्ष अन्न शरीर में शुष्कता विरुक्षण करता है, जामुन वात जनन है, शस्कुली पूरी कफ पित्त कारक है, कुलथी अम्ल पित्त कारक है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। अब बात आती है कि डिफरेंट प्रकृति के हिसाब से डाइट का क्या प्लान करना है। हर व्यक्ति in this world, each person is a unique being of unique heredity, unique environment, unique biochemical structure, and unique mental status. For this reason, all the natural and good foods item cannot be effective with all the individuals to the same extent. हर व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं हो सकता है किसी एक के लिए अच्छा हो, किसी एक के लिए वो खराब भी हो। Every individual should take a diet suitable to his predominant constitutional doshas to balance them in different seasons. प्रकृति परीक्षण करने के पश्चात ही उसे क्या खाना, ये ऐसा हम कर सकते हैं क्या? वात प्रकृति व्यक्तियों में फूड्स टू फेवर, जो वात का समन करते हैं, उष्ण स्निग्ध भोजन, मधुर अम्ल लवण प्रधान भोजन, विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, दाल, इनका चयन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि समय के हिसाब से हमें चलना है, इसलिए थोड़ी सी चीजें हम कट कर रहे हैं। उसी प्रकार से क्या चीजें नहीं खानी है या क्या चीजें नहीं बतानी है ऐसे व्यक्ति को जो वात रोग से पीड़ित हो या वात प्रकृति के हों। लाइट, ड्राई, रफ, कोल्ड फूड्स, फूड्स ऑफ पंजेंट, बिटर एंड स्टेंजेंट टेस्ट, तत्राद्या मारुतम घ्रंथि, त्रयस्तिक्ताद्य कफम, कषाय तिक्त मधुरा, पित्त मन्यतु कुर्वते। इस सिद्धांतों के हिसाब से हमें आहार का चयन करना है। देन पित्त प्रकृति के लिए क्या? कूल, स्लाइटली ड्राई एंड लिटिल हैवी फूड्स, फूड्स ऑफ स्वीट, बिटर एंड स्टिंजेंट टेस्ट, त्रयस्तिक्ताद्य कफम, कटु तिक्त कषाय। तो ये देखना है फल कौन कौन से लेने हैं। देन कौन सी चीजें जो पित्त का वर्धन कर रही हैं उसको अवॉइड करना है। हॉट, शार्प एंड लाइट फूड्स, फूड्स ऑफ सावर, साल्टी एंड पंजेंट टेस्ट, ये चीजें नहीं खानी है। यदि इसका चार्ट हमारे पास है तो हम हर व्यक्ति को यह बता सकेंगे फूड्स टू अवॉइड इन पित्त विशिएटिंग पर्सन। उसी प्रकार से कफ प्रकृति में फूड ऑफ पंजेंट, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, कफ सामक कौन कौन से आहार, फल, दाल, सब्जियां हैं, इसे हमें चयन करना है। कौन कौन सी चीजें
कफ प्रधान लोगों में नहीं खानी है, अवॉइड करना है। अब बात आती है अपने मानसिक प्रकृति की। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया। भगवद गीता में क्या गया है? सात्विक डाइट इंक्लूड्स प्योर, फ्रेश, light, sweet, unctuous and palatable substances. Fresh and seasonal fruits and vegetables, grains like rice, wheat, moong, milk, ghee, clarified butter, seeds and nuts. बहुत सी चीजों के बारे में चर्चा हम लोग इसको ऐसा रख सकते हैं। सात्विक डाइट contains all the nutrients, that is carbohydrate, fat, vegetable proteins, minerals and vitamins essential for growth and maintenance of health. तो सात्विक आहार के बारे में कल्पना की गई है। देन राजसिक आहार कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीनः आहार राजसस यष्टा दुख सुख आमय प्रदा। वात और पित्त को बढ़ाते हैं, causes hyperacidity, restlessness, irritability, insomnia, because they are increasing toxins in the blood. Excessively spicy, salty, sour, chilies, garlic, onion, wines, pickles, ये सारे पित्तवर्धक हैं और जो रज को भी बढ़ाते हैं। This diet is irritating and of low calorie value, deficient in proteins, essential vitamins and minerals. ये ध्यान देना है। Then तामसिक आहार यातयामम गतरसम पूति परिषितम च यत उच्चिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। Tamasic diet causes rigidity, lethargy, excessive sleep, absence of intellect and accumulates cough and waste products. Stale, old, recooked, rancid, artificial, heavy and too cold. All dead food, all meats and fishes, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। बड़े बड़े शहरों में खाना आ गया है, 3 दिन का बना लिया है, 1 दिन बनाया 3 दिन खाया गरम करके, रीकुक्ड है, आर्टिफिशियल फ्लेवर पड़े हुए हैं, जो बने बनाए आहार आ रहे हैं। This diet is generally rich in animal protein and fats and heavy to digest, less nourishing, deficient in carbohydrate and macronutrients. तमस गुण की वृद्धि करते हैं। हमारे यहां तो भोजन के पहले प्रार्थना का विधान है। Due to its great significance, the food has attained the highest position of Brahman in this universe. Hence, before taking the food for the betterment of life, it should be worshipped in its full religious and ethical discipline. These religious practices increases devotion towards diet and have good impact on the mind and body. भोजन के पहले हमारे यहाँ बैठ करके जल छिड़क करके मंत्रोच्चार का विधान है, क्योंकि ये भोजन अन्नपूर्णा के प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण कर रहा हूं, ये हमारे मन और शरीर को दोनों को स्वस्थ रखे। Then seasonal consideration of dietetics. किस सीजन में क्या खाना है? There has been a thorough consideration for seasons besides the dietetic regimens for days and nights. हमारे यहाँ 6 प्रकार के ऋतुओं का वर्णन है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। वहां पे किस दोष का प्राधान्य है, उसके आधार पे भोजन का निर्णय किया गया है। शिशिर ऋतु में क्या खाना है, कौन सा रस प्रधान है? तिक्त, रस और आकाश गुण प्रधान शिशिर ऋतु। व्यक्ति का बल कम है,
कफदोष का संचय है, अग्नि बढ़ी हुई है। क्या लेना है? Foods having katu, तिक्त, कषाय, predominant rust are to be avoided. Laghu and sheath foods are advised to be prohibited. What to prefer? Amla ras, cereals and pulses, wheat, gram, flour products, new rice, corn and others are advised. Ginger, adrak, लहसुन, हरितकी, पिपली, शुगर केन प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, इनका ग्रहण करना है। देन वसंत ऋतु, कसाय रस प्रधान, पृथ्वी और वायु प्रधान है और व्यक्ति का बल मध्यम है। कफ दोष का वृद्धि हो रही है और अग्नि भी थोड़ी मंद है। क्या भोजन करना? ऐसी चीजें जो पचने में कठिन हो, अवॉइड करना है। शीत, स्निग्ध, गुरु, अम्ल, मधुर आर नॉट प्रीफर्ड। न्यू ग्रेन्स, कर्ड, कोल्ड ड्रिंक्स आर टू बी प्रोहिबिटेड। देन ग्रीष्म ऋतु, प्रीडोमिनेंट रस इज कटु एंड महाभूत जो प्राधान्य है वो अग्नि और वायु है। व्यक्ति का बल सबसे कम है ग्रीष्म में और वर्षा में। वात दोष की वृद्धि है। देन अग्नि ऑफ द पर्सन विल रिमेन इन माइल्ड स्टेट। तो ऐसी चीजें मधुर, स्निग्ध, शीत, द्रव, राइस, lentil, etc. are to be taken. Drinking plenty of water and other liquids, cold water, buttermilk, fruit juices, meat, soups, mango juice, churred curd with pepper. तो ये चीजें हमारे यहाँ बताई गई हैं। इसी प्रकार से वर्षा ऋतु में जहां पे अम्ल रस प्रधान और पृथ्वी और अग्नि की प्रधानता है, अगेन यहां पे वर्षा ऋतु में बल कम है, वात की वृद्धि है, तो अम्ल, लवण, स्नेह युक्त आहार लेना है। ओल्ड बार्ली, राइस, व्हीट बताया गया है। और क्या नहीं लेना है? इंटेक ऑफ रिवर वाटर, excessive liquid, wine are to be avoided. जो चीजें भारी हो, जो पचने में कठिनाई हो, जैसे मांस इत्यादि, इनको नहीं लेना है। देन शरद ऋतु, जहां पे लवण प्रधान और अप और अग्नि महाभूत प्रधान है। व्यक्ति का बल मध्यम है। पित्त दोष बढ़ रहा है, अग्नि बढ़ रही है। मधुर रस, तिक्त रस, लघु और एंड कोल्ड प्रॉपर्टीज आर एडवाइज्ड। इसी तरह से हॉट, बिटर, स्वीट एंड एस्ट्रिंजेंट फूड्स आर टू बी अवॉइडेड। ज्यादा घी, तेल, दही इत्यादि मनाही है। हेमंत ऋतु में वातवर्धक आहार जैसे लघु, शीत, शुष्क औषध और आहार को नहीं लेना है और कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना है। ये हमें ऋतु के अनुसार चर्चा करनी है, तय करना है, या हम करते भी हैं, ऐसा नहीं, बहुत से चिकित्सक करते हैं। अब हम आते हैं रोगों में क्या पथ्य और क्या अपथ्य है। सामान्यतः मरीज आता है और वो अपने रोग की आपने डायग्नोसिस कर ली है, पूछता है सर हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना बता दीजिए। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा चार्ट है, हम उस पर लिख लें, एक 20, 25, 30, 40
रोग के मरीज ज्यादा होते हैं यदि हम स्पेसिफाई कर दें, या प्रकृति के हिसाब से स्पेसिफाई कर दें, या ऋतु के हिसाब से स्पेसिफाई कर दें। बना बनाया चार्ट, उसमें टिक कर दी, ये खाओ ये नहीं खाओ लिखा हुआ है। उसी तरह से हमने कामला, अर्श, आमवात, मधुमेह, स्वयथु, कृमि, रक्तपित्त, यक्ष्मा, कास, श्वास, छर्दी, उन्माद, दाह, ज्वर, इनकी चर्चा हमने अपने की है। कुछ नई चीज नहीं है। षडंग पानीय, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। पुस्तपर्पट कोशिर चंदनोदिच्य नागरेही, ज्वर में हम देते हैं, जहां पे अग्नि का वर्धन करना है वहां देते हैं। कुछ चीजें पथ्य और अपथ्य के श्रेणी में हैं, उनका भी चयन करना है। पटोल है, करेला है, अनार है, मौसमी है, ग्रेप्स हैं, पथ्य हैं। क्या पथ्य हैं ये ध्यान देना है। ये ज्वर के परिप्रेक्ष्य में कहा गया, अतिसार में, अपस्मार में, वातव्याधि में। फिर बात आती है एलोरी, हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। चिकित्सक लोग हैं, सभी पथ्य और अपथ्य की जानकारी रखते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग इसे अपने व्यवहारिक रूप में नहीं ला पाते हैं। Ayurveda is not merely a medical science, but it is a science of life. It always advocates the complete well-being of an individual, which includes one's physical, mental, and spiritual well-being. Food, being the most important aspect of one's life, can prevent many illnesses if consumed wisely and in accordance of rules. For diseased person, there are a variety of pathyas and apathyas indicated by our great acharyas. Regular consumption of pathya ahar and regular avoidance of apatya ahar can work wonders in the complete well-being of a person. जो हमारा सिद्धांत है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आत्म विकार प्रशमनम च, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए उसकी प्रकृति जानना जरूरी है, उसका अग्निबल जानना जरूरी है, किस ऋतुओं में क्या खाना है, इसकी जानकारी यदि हम लोगों तक पहुंचा सकें तो अधिकतम व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। आजकल लोग बाजार पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं और बाजार में उपलब्ध आहार की गुणवत्ता के बारे में मुझे किसी से चर्चा नहीं करनी। सब जानते हैं किस प्रकार का खाद्य पदार्थ यूज कर रहे हैं, कौन सा तेल यूज कर रहे हैं, कौन से मसाले यूज कर रहे हैं। और आजकल ये एक फैशन हो गया है बाहर से खाना मंगाने का, जो विभिन्न प्रकार के रोगों को आमंत्रण दे रहा है। नरोहिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेष व सत्तः ताता समः सत्यपर क्षमावान आप्तोपसेवी च भवत्य रोग। इस श्लोक के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा और अब समय है अगले वक्ता का, अगले प्रश्नोत्तरी का या अन्य वार्ता का। Thank you very much, sir, for sharing your valuable with us. Now the session is open for question and answer round. If any participant have any query or question to ask, you may unmute yourself and ask the question. Participant can also write in the chat box if they have any query or question to ask. Very congratulations from Dr. Raman Singh Varanasi. सर प्रणाम। You have discussed elaborately on the benefit of the patient, benefit of the public, benefit of the doctor. On every corner you have deal very elaborately. Thank you very much and congratulations. प्रणाम सर। Okay, bye.
If the participant want to ask any question, you may unmute yourself and ask the question. I request other participants to please mute yourself. Those who wanted to ask anything, please unmute yourself. Thank you very much, sir, for detailed explanation on the topic of concept of. I think there is no more questions from participant side. So we are concluding our today's session. Thank you everyone for your patient listening. If anybody still have any query related to the lecture, you can also write us on our email address. At the end, I request Dr. Shah for Dr. Paritosh Jha. Now we are concluding our today's session. Thank you. Thank you, Dr. Anu. If anybody still have any questions, okay. Thank you, Dr. Anu. Please continue, sir. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on 40th webinar of Gyan Ganga Knowledge of Wise, a webinar series organized by RAV. A big thanks to Dr. Kamlesh Kumar Dwivedi, sir, for sharing his experience, views, knowledge regarding concept of Ayurveda Ahar. Thank you, sir, for enriching our knowledge by your detailed discussion. I would like to thank respected Vaidya Shri Devendra Runaji, President Governing Body RAV, for his blessing and continuous encouragement. I am also grateful to Dr. Manoj Nesri, sir, Advisor Ayurveda, Ministry of Ayush. His able guidance has always encouraged us to achieve the best. I would like to take this opportunity to pay my heartiest regard to Dr. Anupam Srivastava, sir, Director RAV, for his continuous support, guidance, and enormous cooperation throughout the webinar. At last but not the least, I would like to thank and congratulate Team RAV for their tremendous effort to put forward this webinar series of great success. I'm also thankful to all the participants, gurus, shishya, who are connecting with us continuously throughout the series. Topic and speaker for the next webinar will be shared with you soon. Thank you and have a nice day. The participant may leave the meeting. The meeting is over. सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी। और आरएवी से मैं एक नाम छूट गया था, हमारे मित्र रामाकृष्णा जी, उनको भी विशेष धन्यवाद। Thank you very much, sir. Now the meeting has ended. Participants, the meeting. Thank you.